Hello everyone, welcome to Pathshala IIT JEE or Medical Muzaffarpur. Here I am Shimanshu Kumar pursuing my BTech in Computer Science and Engineering and now a Faculty of Physics in Pathshala IIT JEE Muzaffarpur. Hello everyone, welcome to this video. Today we are going to discuss the fourth lecture chapter Chemical Reactions and Equation of class 10th. In all those previous lectures we had read about introduction of chemical reactions and equation, that what is a chemical reaction and how do we write a chemical equation. The second was characteristics of chemical reaction, that what are the 5 or 6 characteristics of chemical reaction that gives us the information that the chemical reaction is completed. The third was balancing of a chemical reaction, that how can we balance a chemical reaction or a chemical equation so that the law of conservation of mass doesn't violates. The next was types of chemical reactions, that there were many types of chemical reaction. So in today's lecture we are going to discuss the types of chemical reaction, and in the upcoming lectures we will discuss about the effect of oxidation reduction in everyday life. So moving forward, these are some types of chemical reactions in which the first reaction is combination reaction, second one is decomposition reaction, then single displacement reaction, double displacement reaction, redox reaction, endothermic reaction, exothermic reaction, precipitation reaction and neutralization reaction. So we will learn about all these reactions in the upcoming lectures. So the first type of chemical reaction is a combination reaction. So what is a combination reaction? It is a type of reaction in which two elements or more elements and one compound or two compounds combine to give one single product. Basically in combination reactions, two or more compound combines together to form a single product. तो combination reaction में क्या होता है, दो एलिमेंट या फिर एक एलिमेंट और एक कंपाउंड या फिर दोनों कंपाउंड ये सारे मिलके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. मतलब बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें सिंथेसिस होता है, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं. सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, जोड़ना. सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, जोड़ना. तो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस रिएक्शन, दैट एवर एंड एवर इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन देयर विल बी ओनली वन प्रोडक्ट. राइट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा ही एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन जब फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का तो वो हमेशा एक सिंगल प्रोडक्ट ही बनेगा. सो लेट्स हैव सम एग्जांपल. द फर्स्ट एग्जांपल इज H2 in the form of gas and chlorine also in the form of gas reacts together or combines together to form hydrogen chloride, that is hydrochloric acid. This is what? This is hydrochloric acid. The next example is carbon monoxide reacts with oxygen to form carbon dioxide gas. So here carbon monoxide is what? Carbon monoxide is a compound. So what is a compound? When two or more atoms combine together, they forms compound, right? So what is CO? Here is a carbon atom and another one is oxygen atom. So carbon monoxide is a compound and oxygen is made up of only one atom, that is oxygen. So it is an element. तो अंतर समझ में आ गया. कंपाउंड एलिमेंट क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एटम जब साथ मिलते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं. और जब एक ही तरह के एटम मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट. तो एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस समझ में आ गया. सो कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विथ एन एलिमेंट दैट इज ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ गैस. इट कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड. इट इज आल्सो अ कंपाउंड. सो here it was an element. Two elements combines together to form a product. Here a compound and an element reacts together to form a product. And the next one is here NH3. NH3 is a compound. Ammonia reacts with hydrochloric acid. It's also a compound to form ammonium chloride. It's a salt. ठीक है, तो two compounds combines together to form one product. It is also known as combination reaction. So we get two elements, one element, one compound and two compounds. All examples are clear. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, समझ में आ गया. जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड आपस में कॉम्बिनेशन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. समझ में आ गया. द नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन? It's a type of reaction in which a single reactant decomposes on the application of heat or light or electricity to give two or more products.
So we can say that this decomposition reaction is just opposite to the combination reaction. क्यों? कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, दो रिएक्टेंट साथ मिलके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे, लेकिन डीकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट का ब्रेकडाउन होता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एक सिंगल रिएक्टेंट टूटता है, डीकम्पोज करता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में, तो उस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है. सो व्हेन a single reactant breaks down or decomposes to form two or more than two products, then that reaction is known as what? Decomposition reaction. Got my point? So here three words are used by the application of heat, by the application of light, and by the application of electricity. So these three are, तो ये तीन क्या है, ये तीन वो अस्त्र है जिसके प्रभाव से ये टूट जाता है, यानी ब्रेकडाउन होने के लिए इस तीनों टाइप्स के एनर्जी का जरूरत पड़ता है. राइट. सो लेट्स हैव सम एग्जांपल. द फर्स्ट एग्जांपल इज ट्वाइस ऑफ H2O breaks down or decomposes to form hydrogen and oxygen. NaCl, that is sodium chloride as a salt, breaks down to form sodium and chlorine gas. राइट. तो इसमें क्या हो रहा है, इन दोनों रिएक्शंस में देखो, जो रिएक्टेंट है वो एक सिंगल रिएक्टेंट है और ये टूट रहा है, इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है इन टू प्रोडक्ट, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन. समझ में आ गया. अब डीकम्पोजिशन में तीन टाइप के डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं. पहला होता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा होता है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर तीसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कितने तरह के हुए, तीन, थर्मल, फोटोलिटिक और इलेक्ट्रोलिटिक. So let's discuss all these three types of decomposition reaction in brief. So the first one is a thermal decomposition reaction. So what is it? The chemical reaction or the decomposition reaction that is caused due to the application of heat. तो वैसा decomposition reaction जो कि हीट के एप्लीकेशन से हो, यानी हीट एनर्जी के प्रभाव से उसका डीकम्पोजिशन हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. एज एन एग्जांपल, यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये टूट रहा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में. अच्छा, एक चीज यहाँ पे देखो, ये जो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है इसको अपन थर्मोलिटिक रिएक्शन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, थर्मोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो थर्मोलिटिक को अगर हम तोड़ेंगे तो थर्मोलिटिक से दो वर्ड आता है, एक आता है थर्मल और लिटिक से आता है लाइसिस. तो थर्मल का मतलब क्या होता है, दैट इज हीट एनर्जी, एंड व्हाट इज मीन्ड बाय लाइसिस, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन. सो वैसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसके ब्रेकडाउन के लिए, जिसके लाइसिस के लिए हमको हीट एनर्जी का जरूरत पड़ता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, थर्मोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कैल्शियम कार्बोनेट था उसको जब अपन हीट करेंगे, जब उसको हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्या करेगा, टूट जाएगा, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में. समझ में आ रहा. यहाँ भी डीकम्पोजिशन हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में टूट रहे हैं, तो ये भी कैसा रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन. जैसे यहाँ देखो, एक बीकर में क्या रखा, एक टेस्ट ट्यूब में अपन ने कैल्शियम कार्बोनेट रखा और फिर उसको जब अपन हीट किए, जब अपन उसको हीट किए तो क्या निकला, कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गया. देखो यहाँ से अपन इसको हीट कर रहे हैं, जब हीट कर रहे हैं तो ये कॉपर नहीं कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाएगा किसमें, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और फिर कार्बन डाइऑक्साइड में. समझ में आ गया. अच्छा, एक चीज और, पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है इसका पहचान कैसे होगा, हाउ डू वी टेस्ट दैट अ रिएक्शन इज गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड. सो व्हेन अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पासेज थ्रू lime water, so the lime water becomes milky. पहले लाइम वाटर कैसा था, कलरलेस था, लेकिन जब उसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराएंगे तो वो मिल्की हो जाएगा. जैसे ही लाइम वाटर को हम इसके पास लाएंगे, यानी इस गैस को लाइम वाटर से अपन पास कराएंगे, तो लाइम वाटर अगर मिल्की में बदल गया, सो वी कैन से दैट गैस वाज कार्बन डाइऑक्साइड. राइट. सो इन द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज देयर इज अमोनियम क्लोराइड which when heated gives two product, that is ammonia एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो जब अमोनियम क्लोराइड को अपन हीट एनर्जी देंगे तो वो क्या होगा, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में टूट जाएगा. तो दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. समझ में आ रहा सबको, पक्का है. तो इस रिएक्शन को हम लोग, सो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग एक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन. व्हाई, बिकॉज
For the decomposition of these reactants, we need heat from the surrounding or from any side. ठीक है, तो वैसा रिएक्शन जिसमें हमको हीट चाहिए होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। याद है हम पहले भी पढ़ाए थे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या था? जब रिएक्शन के बाद हीट रिलीज होता था तो उसको अपन क्या बोलते थे? एक्सोथर्मिक। मतलब रिएक्शन से सराउंडिंग में अगर हीट का रिलीजिंग हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलते थे? एक्सोथर्मिक। लेकिन सराउंडिंग से हीट लेके जब कोई रिएक्शन होता था तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? एंडोथर्मिक। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन का टाइप भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें हीट सराउंडिंग से ये लेके तब रिएक्शन कंप्लीट करता। समझ में आ गया? एवरीथिंग इज क्लियर? सो मूविंग फॉरवर्ड, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज photolytic decomposition reaction. So what it is called? A reaction that requires lights for its decomposition is known as photolytic decomposition. फिर से देखो यहाँ पे भी दो वर्ड है, फोटो और लिटिक। फोटो का मतलब क्या होता? लाइट। और लिटिक का मतलब लाइसिस, यानी कि ब्रेकडाउन। तो वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो लाइट के हेल्प से अपना ब्रेकडाउन करे यानी डिकम्पोजिशन करे किसी लाइट एनर्जी के हेल्प से, किसी लाइट एनर्जी के एप्लीकेशन से, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो अ रिएक्शन दैट रिक्वायर्स लाइट फॉर इट्स डिकम्पोजिशन इज नोन एज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ देखो इसमें क्या हो रहा? जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है 2H2O2, इसको अपन हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो क्या हो रहा? लाइट के इफेक्ट से टूट रहा। किसमें? वाटर में और ऑक्सीजन में। ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड था वो क्या था? एक सिंगल रिएक्टेंट है, और इसमें जब अपन लाइट डालते हैं, लाइट एनर्जी डालते हैं, तो इस लाइट एनर्जी से ये क्या होता? टूट जाता। किसमें किसमें? वाटर में और ऑक्सीजन गैस में। समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट क्या है? फिर देखो सेम रिएक्शन को अपन फोटो के तौर पे दे रहे हैं। इसमें क्या हो रहा? एक बीकर में अपन हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लिए हैं H2O2, और इस पे जब अपन सनलाइट का रेज फॉल कराएंगे तो इस सनलाइट से यानी फोटो से, फोटो क्या होता है? लाइट। तो लाइट जब इस पे फॉल करेगा तो ये क्या करेगा? H2O2 का डिकम्पोजिशन करेगा, इसका लाइसिस करेगा, इसका ब्रेकडाउन करेगा। किसमें? H2O में, और साथ साथ ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? पक्का है? फोटोलिटिक रिएक्शन का एक और एग्जांपल है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है? AgCl है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड। इसको सिल्वर हैलाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्वर हैलाइड। हैलाइड क्यों बोले? क्योंकि जो ये Cl है ये हैलोजन ग्रुप का है। हम लोग सबको पता है कि जो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 17 एलिमेंट होता है, कौन सा? ग्रुप 17 एलिमेंट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? हैलोजन। जिसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको अपन क्या बोलते हैं? हैलोजन। तो ये सिल्वर हैलाइड है, इसका जब अपन फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन करते हैं तो वो किसमें जाता है? सिल्वर में और क्लोराइड में। इसलिए क्या करते हैं? जो हम AgCl होता है यानी सिल्वर हैलाइड होता है, इसको हम लोग डार्क बॉटल्स में स्टोर करते हैं। किसमें? डार्क बॉटल्स में, ताकि इस पे फोटोन्स का कोई इफेक्ट ना हो, यानी लाइट का कोई इफेक्ट ना हो। जैसे ही इस पे लाइट गिरेगा तो वो सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं? इसको डार्क बॉटल्स में स्टोर करते हैं। समझ में आ गया? सो मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज electrolytic decomposition reaction. Here also the electrolytic word is made up of two different words. The first one is electricity and the second one is lysis. That means the reaction in which for the breakdown of any compound there is a need of electricity. यानी वैसा decomposition reaction यानी वैसा breakdown जो इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एप्लीकेशन से फॉलोअप करे, उसको अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो हियर इज एन एग्जांपल। इसमें क्या हो रहा? जो वाटर है H2O, उस पे अपन इलेक्ट्रिक करंट डाल रहे हैं, यानी उससे अपन इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहे हैं, तो क्या हो रहा? वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जा रहा है। द सेम वन इज नेक्स्ट। इसमें क्या हो रहा है? जो सोडियम क्लोराइड है, इस सोडियम क्लोराइड से जब अपन इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो किसमें टूटेगा? सोडियम में और क्लोरीन गैस में। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। तो यहाँ पे देखो एक रिएक्शन और हमने लिखा है Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड से जब अपन इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, तो वो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में होता क्या है? ये जो वाटर हुआ, NaCl हुआ, Al2O3 हुआ, ये सब क्या होता है? जैसे NaCl वो क्या है? सॉल्ट है। ठीक है, तो सॉलिड फॉर्म में है, तो इलेक्ट्रिक करंट हमेशा लिक्विड से पास कराया जाता है या फिर मोल्टन से पास कराया जाता है। तो हम क्या करते हैं? जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, जैसे Al2 हो गया, ये पहले से लिक्विड में है, लेकिन NaCl क्या था? सॉलिड में था। तो अपन क्या करते हैं? इसका आइदर सॉल्यूशन बनाएंगे या फिर इसको मोल्टन स्टेट में चेंज करेंगे। आइदर अपन NaCl का सॉल्यूशन लेंगे या फिर
मॉल्टन स्टेट में अपन इसको कन्वर्ट करेंगे। मॉल्टन मतलब क्या होता है, उसको थोड़ा हीट देते हैं और उसको सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। तो मोल्ट होने के बाद तो जब सॉल्यूशन बनाते हैं या फिर जब उसको मॉल्टन स्टेट में लाते हैं तो सॉलिड का क्या होता है, आयंस बन जाता है। वैसे ही हर एक लिक्विड्स का जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो इसका आयंस बन जाएगा, ठीक है। जैसे NaCl में क्या होगा, Na+ और Cl- का आयन बन जाएगा। Al2O3 में क्या होगा, एल्यूमिनियम +3 और ऑक्सीजन -2 का आयंस बन जाएगा। ये तो पता है ना, सबको क्लास 9 में पढ़ना था ना। तो जब Al2O3 से या फिर NaCl से या फिर H2O से इसमें क्या होगा, H+ और O2- का बन जाएगा आयंस। तो जब इससे अपन इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये क्या करता है, इसको आयंस में तोड़ देता है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, तो उसमें दो चीज आते हैं, एक आते हैं कैथोड और एक आता है एनोड। तो जो कैथोड होता है वो निगेटिव साइन का होता है, क्यों, क्योंकि ये हमेशा ही कटायन को अट्रैक्ट करता है। और जो एनोड होता है अट्रैक्ट्स, और जो एनोड होता है ये पॉजिटिव होता है, क्यों, क्योंकि ये अनायन को अट्रैक्ट करता है। अनायन कैसा होता है, निगेटिव आयन होता है, तो निगेटिव आयन को ऑब्वियसली कोई ना कोई पॉजिटिव चीज ही अट्रैक्ट करेगा, इसलिए एनोड क्या होता है, पॉजिटिव, और कैथोड क्या होता है, निगेटिव, क्योंकि ये कटायन यानी पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करता है। समझ में आ गया, पक्का है। सो एक चीज याद रखना, कैथोड कैटायन, एनोड अनायन, ठीक है। कैथोड कटायन को अट्रैक्ट करेगा और एनोड अनायन को, Cc और A। समझ में आ रहा है, पक्का है भाई, 100%। तो इसमें क्या होगा, जो हाइड्रोजन था वो क्या है, कटायन है। जो Al+3 था वो क्या था, कटायन था। जो Na+ था वो क्या था, कटायन था। तो ये तीनों क्या होगा, कैथोड पे जाके जमा हो जाएगा, यानी जो Na है ये किस पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, O2- हो गया, फिर Cl- हो गया, ये सब किस पे जाएगा, एनोड पे। क्यों, क्योंकि O2- पे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, यानी ये अनायन है, और अनायन किस पे जाता है, एनोड पे। तो एनोड पे क्या जाएगा, O2 Cl2, या फिर यहाँ पे भी O2 और यहाँ पे Al किस पे जाएगा, कैथोड पे। तो समझ में आ गया इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन क्या होता है। जब अपन मोल्टन स्टेट से इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो वो आयंस में टूट जाता है। आयंस में दो प्रकार के आयंस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव आयन होता है वो कैथोड पे जाता है और जो नेगेटिव आयन होता है वो एनोड पे जाता है। समझ में आ गया, तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। सो in the next upcoming lecture we will discuss about the single displacement reaction. Till then, thanks and good luck.